Yes, my dear friends. Now we will start chapter 3, section 3, definitions, right? Definitions, maybe one definition is important for examination, means one from this all. So one definition will definitely be there in the examination. So this chapter is important for one question, okay? So you should understand, you cannot memorize, right? So this should be understood by each and every person, because this is important for API for 653, 570, 510, for all and each API examination. Clear? So this is same for all. So alteration, what is alteration? So any work on a tank that changes its physical dimensions or configurations, right? So the dimension changes, means if the dimension will change, then definitely its design parameters will change. Clear? So we can tell, okay, dimension can be changed or its configuration can be changed. If there is some change in its temperature, maybe some change in this pressure, right? So that is called alteration. Now as-built standard, what do you mean by as-built standard? The standard from which the tank was constructed, maybe whatever year it is, right? So if it is constructed as per API 650 edition 2014, so API 650 is its as-built standard. Edition may be any. Clear? And okay, now authorized inspection agency. ओके तो अभी ऑथराइज इंस्पेक्शन एजेंसी कौन सा है, कौन सा एजेंसीज उसको इंस्पेक्शन कर सकता है. क्लियर? सो ऑथराइज्ड इंस्पेक्शन एजेंसी इज, एक तो जो ज्यूरिडिक्शन है, यानी कि जो वहाँ का न्यायालय है उसकी तरफ से जो भी इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया है, ठीक है, या उसको ऑपरेट करता है, किसका तरफ से? ज्यूरिडिक्शन का तरफ से, वो ऑथोराइज्ड है क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट थ्रू है, राइट. सेकंड वन इज जो उसका इंश्योरेंस कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज. व्हाट इंस्पेक्शन एजेंसीज आर हायरिंग द इंस्पेक्टर्स और द organizations, right? Means TPIs. Generally TPIs everybody is hiring, right? So the TPIs companies, organizations hired by insurance companies, that is also authorized inspection agencies. Clear? Now third one is owner operator is hiring the agency, inspection organization or the agency, that is also for authorized inspection agency. We can count that one. So and third one is an independent organization, right? Or individual under contract to the to and under the direction of the owner operator and recognized or otherwise not prohibited by the jurisdiction. Means all the organizations who have capacity but it is not prohibited by jurisdiction and they are operating the tanks or inspecting the tanks, that are authorized organizations, inspection agencies, right? So four, one is organization authorized by jurisdiction, second one is organization that is authorized by insurance companies, means both are authorized, one by jurisdiction and one by insurance company. Third one, authorized by owner. Clear? So all three are authorized by. And fourth one is individual, which is not authorized but it is not prohibited by the jurisdiction. Means all the companies who have capacity to inspect the tank, who have API certified inspectors, they can go for this thing, right? So most of inspection agencies are authorized. Clear? So these 4 points is important for examination. Clear? Authorized inspection agency.
Now authorized inspector. What is that one? Authorized inspector. Authorized inspector means the person or an employee of an authorized inspection agency who is qualified and certified to perform inspections under these inspection standards. बराबर है? क्लियर? तो ऑथोराइज्ड इंस्पेक्शन एजेंसी का कोई भी एम्प्लॉय जो ऑथोराइज्ड एंड सर्टिफाइड है, क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड, ठीक है? क्वालिफाइड क्या? तो ऑलरेडी ये लोगों ने जो हमको BOK में दिया हुआ है, क्वालिफाइड मीन्स BOK में हम लोग जाएंगे, उधर भी हम लोग देखेगा जब भी उसका नंबर आएगा। क्लियर? तो ऑथोराइज्ड इंस्पेक्टर कौन है? जो ऑथोराइज्ड इंस्पेक्शन एजेंसी का एम्प्लॉय है और जो एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड है, सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड, वो ऑथोराइज्ड इंस्पेक्टर है। फिर से एक बार, ऑथोराइज्ड इंस्पेक्शन एजेंसी होना मांगता है, कोई भी अंडू पंडू एजेंसी नहीं चलेगा। तो ऑथोराइज्ड इंस्पेक्शन एजेंसी का क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड जो पर्सन है, ही इज ऑथोराइज्ड इंस्पेक्टर. If I am certified as a API 653 inspector and I am working under some organization or some inspection agency who is also authorized inspection agency. So many are there. We are know Bureau Veritas, TUV, Lloyds, right? तो इनका जो भी एम्प्लॉयज़ है, इनके इंस्पेक्टर्स है, लेकिन जिसने API 653 सर्टिफिकेट नहीं है, he is not authorized to inspect tanks as per this standard, right? So authorized inspection agency plus qualified and certified person, he is authorized inspector. Clear? Now break over point. अभी ये ब्रेक ओवर पॉइंट क्या है? तो ब्रेक ओवर पॉइंट जहाँ से सेटलमेंट बिगिन होता है, वहाँ पे क्या होता है? जो आपका बॉटम प्लेट है, जनरली सेटलमेंट बॉटम प्लेट पे होता है। क्लियर? तो बॉटम प्लेट में क्या होता है कि जहाँ पर भी सेटलमेंट होता है वहाँ से वो प्लेट बैंड हो जाता है, तो वो लोकेशन पे क्या होता है? सेम चीज़ ब्रेक होता है या ब्रेक होने का चांसेस रहता है, क्योंकि जब तक उसका इलास्टिसिटी प्लेट का रहेगा तब तक वो बैंड होएगा, आफ्टर दैट इट विल ब्रेक। सो जनरली हम लोग बोलेगा तो वो ब्रेक ओवर पॉइंट हो गया, वहाँ से ब्रेक हो सकता है। क्लियर? नाउ कैंडिडेट टैंक। ओके, तो दो सेंटेंसेस जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वन इज़ कैंडिडेट टैंक एंड वन इज़ कंट्रोल टैंक। ठीक है? तो कैंडिडेट टैंक समझने से पहले हम लोग कंट्रोल टैंक समझेंगे। कंट्रोल टैंक क्या है? कंट्रोल टैंक वो है जो टोटली कंट्रोल में है। अब टोटली कंट्रोल में है मतलब क्या है? मतलब ये है उसका जो भी पैरामीटर्स है, जैसे कि कोरोजन रेट, राइट, और उसका जो भी हिस्ट्री है, past history, whatever corrosion rate is there, whatever processes they have changed, whatever repairing has been done, whatever shutdowns has been done on that tank, that is controlled because we have all the documentations and all the parameters of that tank, so it is control tank. लेकिन वो टैंक का क्या जिसका कोई भी पैरामीटर हमारे पास नहीं है, मीन्स जो टैंक अभी तक एक बार भी इंस्पेक्शन नहीं हुआ है, मीन्स वो टैंक जो अभी न्यूली इंस्टॉल हुआ है और जिसको 2 महीना 3 महीना 4 महीना हुआ है, तो नया टैंक के ऊपर हम लोग कोई इंस्पेक्शन करने वाला नहीं है। क्लियर? अप टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी वो जो टैंक है उसका बिहेवियर क्या है टूवर्ड्स वॉट एवर फ्लूइड इज देयर इनसाइड, राइट? अभी उसके अंदर कोरोजन हो रहा, कितना परसेंटेज हो रहा, नोबडी नोज, स्टिल we will measure that one, we will inspect that one. तो वो जो टैंक है जिसका अभी तक हम लोगों ने इंस्पेक्शन नहीं किया है, जिसका पैरामीटर्स हमको मालूम नहीं है, जिसका कोरोजन रेट हमको मालूम नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड कैंडिडेट टैंक। क्लियर? तो वो हमारा कैंडिडेट है अभी, जिसको हमको अभी कंट्रोल टैंक में कन्वर्ट करना है। तो उसका भी एक सर्टेन टाइम पीरियड है, वो भी हम लोग देखेगा कि कैंडिडेट टैंक को कितना टाइम के बाद इंस्पेक्शन करना ज़रूरी बन जाता है टू गेट
to get the parameters. So it will convert to control tank. Clear? So candidate, we don't know the parameters. Control tank, we know the parameters. Clear? Now change in service. What do you mean by change in service? ओके हम लोग क्या करेगा, कोई भी चीज़ को मेमोराइज नहीं करेगा, हम लोग उसको समझेगा. तो समझने से क्या होता है कि उसको कैसा भी घुमा के फिरा के तोड़ के पूछेगा ना, देन वी विल कम टू नो, ओ ये तो ये वाला चीज़ है. यदि हम लोग मेमोराइज करते हैं तो यदि वो सेंटेंस या वर्ड्स चेंज करेगा, देन वी विल गेट कन्फ्यूज्ड. क्लियर? नाउ चेंज इन सर्विस, जैसा वर्ड ऐसा मीनिंग. चेंज इन सर्विस में यदि फ्लूइड चेंज होता है, ठीक है, तो फ्लूइड चेंज होगा तो उसका क्या होगा, पैरामीटर्स भी चेंज हो जाएगा. अभी चेंज होने में बहुत सारा चीज़ चेंज हो सकता है. फॉर एग्जांपल उसका ग्रेविटी चेंज हो सकता है, और फ्लूइड चेंज होने से उसका कोरोजन रेट भी चेंज हो जाएगा, राइट. उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, उसका प्रेशर चेंज हो सकता है. मतलब जो सर्विस अभी चल रहा था, जो टेम्परेचर चल रहा था, जो प्रेशर चल रहा था, जो उसका ग्रेविटी था, या जो उसका फ्लो रेट था, या जो उसका कोरोजिविटी था यानी कि कोरोजन रेट था, उसके अंदर कोई भी चेंज होता है, देन इट इज़ कॉल्ड चेंज इन सर्विस. फॉर एग्जांपल एक और भी एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल कि उसका जो प्रोडक्शन था, कोई भी रिफाइनरी है, उसका प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल 200 बैरल्स पर डे है, राइट. लेकिन वो डिज़ाइन किया गया है 400 बैरल्स पर डे या तो 500 बैरल्स पर डे. और क्या होता है, मार्केट में डिमांड बढ़ता है, तो मैनेजमेंट क्या बोलता है कि भाई हमारे पास जो भी फाइनल प्रोडक्ट है वो कम पड़ रहा है, तो क्या करो, उसका स्पीड बढ़ाओ. अभी प्रोडक्शन का स्पीड बढ़ाने के लिए लोग क्या करेगा, उसका फ्लो बढ़ाएगा. तो फ्लो बढ़ाने से क्या होता है, उसका जो सेडिमेंट्स है वो ज़्यादा फोर्स में जाएगा, तो इट विल कोरोड, इट विल स्टार्ट इरोजन, राइट. सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन सर्विस. टेम्परेचर बढ़ाना, क्योंकि फ्लो बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. तीसरा चीज़, उसका फ्लो बढ़ने से उसका कोरोजन रेट बढ़ जाता है, राइट. और वाइब्रेशंस भी बढ़ जाता है फ्लो रेट से. तो यही है जो डिज़ाइन पैरामीटर्स, वो डिज़ाइन पैरामीटर्स में है. ऐसा नहीं बोल सकते कि डिज़ाइन पैरामीटर से बाहर चला गया, क्योंकि वो डिज़ाइन किया गया है 500 बैरल्स पर डे, लेकिन उसका जो प्रोसीजर था या जो उसका सर्विस पैरामीटर्स था वो हमने चेंज किया. दैट इज़ कॉल्ड चेंज इन सर्विस. अभी कंट्रोल टैंक हम लोग देख लिए. नाउ कोरोजन रेट. कोरोजन रेट क्या है, अभी यहाँ पे जो दिया है, टोटल मेटल लॉस डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ टाइम ओवर विच द मेटल लॉस अकर्ड. ओके खलास, इतना ज़्यादा नहीं, हमको ये देखना है इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कितना कोरोजन हुआ, राइट. तो वो देखने के लिए जो फॉर्मूला है, उसने ये फॉर्मूला डिस्क्राइब किया हुआ है, हमको इतना जाने का ज़रूरत नहीं है. तो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितना कोरोजन हुआ या कितना मेटल लॉस हुआ, दैट इज़ कॉल्ड कोरोजन रेट, राइट. वो फार्मूला हम लोग समझेंगे, ये आपको क्लियर होगा. नाउ क्रिटिकल जोन. क्रिटिकल जोन किसको कहा गया है, तो टैंक का इनसाइड में बॉटम शेल से, बेबी बॉटम शेल जो है उसके नीचे कभी कभी क्या होता है, बॉटम प्लेट के ऊपर ये लोग शेल लगा देता है. कभी कभी क्या होता है, एनुलर प्लेट लगाता है शेल का नीचे. तो जो भी लगा हो, बॉटम प्लेट आइदर एनुलर प्लेट, हम लोग क्या करेंगे, शेल से इनसाइड में मापेंगे, दैट इज़ 75 mm यानी कि 3 इंच, ठीक है. 3 इंचज़ जो भी हम लोग सर्कल मारते हैं वो जो एरिया है नियर द शेल, ठीक है. अभी वो बॉटम प्लेट पे भी हो सकता है 3 इंच, या एनुलर प्लेट पे भी 3 इंच हो सकता है. दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल जोन. उसमें कुछ समझना नहीं है, राइट. दिस इज स्पेसिफाइड बाय द स्टैंडर्ड कि भाई सेल से 3 इंच का एरिया जो भी है इनसाइड ऑफ द टैंक, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल जोन. दैट्स ऑल क्लास, ठीक है. नाउ करंट एप्लीकेबल स्टैंडर्ड. करंट एप्लीकेबल स्टैंडर्ड मीन्स क्या है, जो स्टैंडर्ड जब भी बना है, जैसे जब भी बना है, दैट इज़ करंट एप्लीकेबल स्टैंडर्ड. अभी आज बनता है तो आज जिस स्टैंडर्ड के हिसाब से बना, दैट इज़ करंट एप्लीकेबल स्टैंडर्ड.
2 साल या 10 साल बाद जो स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेगा, दैट इज एट दैट टाइम करंट एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। और जो 5 साल पहले बन चुका है, तो एट दैट टाइम जो स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बना है, दैट इज ऑल्सो करंट एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। नाउ डोर शीट। अभी डोर शीट क्या होता है, जैसे कि हम लोग बताता है मैनवे, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जब भी किसी भी टैंक का हम लोग मेंटेनेंस करता है या रिपेयरिंग करता है, उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारा पार्ट्स कभी कभी चेंज करने का ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है। देखिए अभी क्या है, छोटा माइनर रिपेयरिंग है, तो क्या होता है, ज़्यादा उसको जो पोरस एरिया जो है उसको क्या करता है, ये लोग फिलअप करता है, या छोटा मोटा पार्ट्स चेंज करता है, या छोटा मोटा प्लेट्स डालता है, तो वो क्या होता है, मेनवे से उसके अंदर चला जाता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, मेजर रिपेयरिंग होता है, तो वो जो मेजर रिपेयरिंग में जो भी पार्ट चेंज करता है, उसका क्या होता है, वो पार्ट मैनवे से अंदर नहीं जा पाता है, बिकॉज मैनवे का एक सर्टेन साइज़ है, 600 mm, 900 mm, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, राइट। तो उसके अंदर से वो साइज़ नहीं जा सकता है। तो हम लोग क्या करता है, जो बॉटम शेल है, वो बॉटम शेल में से सर्टेन एरिया, या तो कभी कभी एक प्लेट निकाल लेते हैं, या कभी कभी आधा प्लेट निकालते हैं, एज़ पर कंडीशन वो एरिया को रिमूव किया जाता है। उसके अंदर से क्या होता है, जो भी पार्ट अंदर ले जाना हो या बाहर निकालना हो, वो सब काम ख़त्म करने के बाद, तो जो भी रिपेयरिंग वर्क है टोटली कंप्लीट करने के बाद में उसको फिर से बंद करके फाइनल कर दिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड डोर शीट। डोर शीट, दैट इज़ नॉट मैनवे, राइट। डोर शीट जो हम लोगों ने टेम्पररीली जो डोर बनाया है अंदर में काम करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड डोर शीट, ठीक है। जो बाद में हमको फिनिश करना है, मतलब उसको फिर से लगा के वेल्डिंग करके उसका जो भी टेस्टिंग है कंप्लीट करके उसको क्लियर करना है, मतलब वो जिस कंडीशन में हमने किया वो कंडीशन उसका मेंटेन नहीं रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड डोर शीट। दैट इज़ नॉट मैन वे, दैट वी हैव टू रिमाइंड, क्लियर। नाउ एग्जामिनर, ओके, व्हाट इज एग्जामिनर। एग्जामिनेशन जो करेगा उसको एग्जामिनर बोलेगा। अभी एग्जामिनेशन क्या होता है, तो NDE, नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन। तो जो एग्जामिनर करेगा, मतलब जो NDT करने वाला है, ही इज़ एग्जामिनर, राइट। नाउ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। अभी एक्सटर्नल इंस्पेक्शन के लिए दो तरह से हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ओके। नाउ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन वो इंस्पेक्शन है जो हम लोग प्रोसेस को डिस्टर्ब किए बिना जो इंस्पेक्शन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। मे बी इट इज़ विजुअल इंस्पेक्शन, मे बी इट इज़ अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन, मे बी इट इज़ TML inspection, right? So a lot of inspections are there, but we are not interrupting the process and we are doing the inspection. That is called external inspection. This is one side. Second side is we are not getting opportunity to inspect the tank from the inside, right. We are not getting opportunity to inspect the tank from inside, so we are doing a formal inspection from outside to mitigate or to check the integrity of the tank, right. That is not 100% integrity. What we are assuming, okay, this location is okay, means tank is okay for the regular process, means we no need shutdown, we no need to inspect from inside, everything is under control, just we are assuming by certain inspections. तो दो तरह से हो गया। एक्सटर्नल इंस्पेक्शन को हम लोग बोल सकता है कि हम लोग प्रोसेस को किसी भी तरह का हानि पहुंचाए बिना जो इंस्पेक्शन करता है, दैट इज़ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। या दूसरा वर्ड से हम लोग बोल सकता है कि हमको इंटरनल इंस्पेक्शन करने का चांस नहीं है, तो उसका ऑल्टरनेट में जो हम लोग इंस्पेक्शन कर रहा है, दैट इज़ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। नाउ क्लियर। नाउ फिटनेस फॉर सर्विस असेसमेंट। अभी फिटनेस फॉर सर्विस असेसमेंट इज ऑल्सो द सेम। अभी विदाउट इंटरमिनेंट फेल्यूर, मतलब फिटनेस फॉर सर्विस हम लोग कब करेगा, फेल्यूर होने के बाद करेगा या फेल्यूर होने का पहला करेगा। डेफिनेटली हम लोग फेल्यूर होने का पहला करेगा, राइट। तो हम लोग जो एक्सटर्नल इंस्पेक्शन जो कर रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्पेक्शन फॉर FFS, फिटनेस फॉर सर्विस। बट खाली उतना ही इंस्पेक्शन FFS में नहीं आता है,
एफएफएस का एक अलग पूरा क्राइटेरिया है, जिससे देखिए हम लोग पढ़ेंगे अ मेथडोलॉजी वेयर बाय फ्लॉज contained within a structure or assessed in order to determine the adequacy of the flawed structure for continued service without intermittent failure. ठीक है, तो कोई भी इंटरमिनेंट फेलियर होने से पहले हम लोग जो इंस्पेक्शन करता है वो उसका स्ट्रक्चर का भी हो सकता है या उसका मेन वेसल का भी हो सकता है, उसको हम लोग फिटनेस फॉर सर्विस कहते हैं. नाउ हॉट टैपिंग. नाउ व्हाट इज हॉट टैपिंग? हॉट टैपिंग ये है कि अंडर प्रोसेस, मतलब वेसल ऑलरेडी चालू है और हमको उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कनेक्शन करने का ज़रूरत होता है. तो वेसल इज अंडर प्रोसेस एंड वी आर पुटिंग सम नोजल्स, मीन्स इनपुट या आउटपुट के लिए हम लोग एडिशनल कुछ लगाता है, कुछ भी नोज़ल होने दो या पाइपिंग डायरेक्ट अटैच करता है या कोई भी चीज़, तो हम लोग उसके अंदर जो टैप किया, हॉट टैप मीन्स अंडर प्रोग्रेस वॉट एवर टैपिंग वी आर डूइंग मीन्स होल वी आर प्रोड्यूसिंग इन दैट शेल, दैट इज कॉल्ड hot tapping. We will study the line. Identifies a procedure for installing a nozzle in the shell of a tank that is in service. Clear? तो सिर्फ एक नोज़ल लगाना है, मीन्स उसके अंदर टैप करना है, मीन्स उसके अंदर होल करना है, राइट? तो इन प्रोसेस में आप कोई भी नोज़ल उसके साथ अटैच करते हैं टैंक के साथ, दैट इज कॉल्ड हॉट टैपिंग. Clear? Now hydro test. Everybody knows hydro test. What is hydro test? A test performed with water. Everybody knows with water only hydro test can happen, in which static fluid head is used to produce test loads. Right? Static fluid heads. Now inspector. Who is inspector? The same. A shortened title for an authorized tank inspector, qualified and certified in accordance with this standard. This means authorized inspector का short form है only inspector, nothing else. Now internal inspection. Now what is internal inspection? A formal, complete inspection as supervised by an authorized inspector for all accessible internal tank surfaces. Clear? So authorized inspector, internal inspection, what we are going to perform from inside of the tank after stopping all the processes, means making it idle, and we are going to perform whatever inspections from inside. It is called inside inspection and it is obviously as per the name, right? Now the important one, 3.20 is major alteration. They can ask, okay, now this repairing we have done or this process we have done, whether it is we have done this process, right? So this process is major repair or alteration or minor repair, they will ask like that. So these all 5 points are very very important. So we will see, okay, 12 inch here, the 12 inch is very very important, right? So installing a shell penetration larger than 12 inch beneath the design liquid level, okay, and installing a bottom penetration within 12 inch of the shell, okay, any penetration. Now third one is removing and replacing or adding a shell plate beneath the design liquid level where the longest dimension of the replacement plate exceeds 12 inch. Now removing or replacing annular plate ring material where the longest dimension of the replacement plate exceeds 12 inch. Now complete or partial weld removal more than 12 inch, whether it is vertical or horizontal. Now installing a new bottom plate. Then removing or replacing part of the weld attaching the shell to bottom in excess amounts listed in blah blah blah, okay. And third one is jacking a tank shell, okay, means अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है. पहले तो 12 इंच, ठीक है, 12 इंच का इम्पोर्टेंट है. यदि आप कोई भी पेनिट्रेशन इंस्टॉल करते हैं,
राइट, बिलो डिज़ाइन लिक्विड लेवल, लेकिन वो 12 इंच से बड़ा होना चाहिए तो वो मेजर में जाएगा। लेकिन यदि 12 इंच से छोटा आप पेनिट्रेशन करते हैं शेल में तो वो मेजर नहीं है, ठीक है। दूसरा है बॉटम पेनिट्रेशन करते हैं आप कितने में। अभी ये सेंटेंस का मीनिंग समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग पेनिट्रेशन करता है एनी साइज, ठीक है, ये मैं आपको बाद में भी समझाएगा एकदम पर्टिकुलर मैनर में, ठीक है। तो यदि हम लोग कोई भी पेनिट्रेशन करता है बॉटम से, शेल का बॉटम से 12 इंच हाइट तक में, मीन्स फ्रॉम एनुलर प्लेट टॉप साइड टू 300 mm हाइट, राइट, फ्रॉम एनुलर प्लेट का हाइट से हम लोग शेल में मेज़र करेगा 12 इंच यानी कि 300 mm। उसके अंदर में हम लोग कोई भी साइज़ का पेनिट्रेशन करता है 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 12 इंच, 24 इंच, एनी टाइप ऑफ पेनिट्रेशन, दैट इज़ कॉल्ड मेजर रिपेयर, ठीक है। अभी क्या होता है, हम लोग शेल प्लेट चेंज करेगा बीनीथ डिज़ाइन लिक्विड लेवल। यदि हम लोग शेल प्लेट में चेंजेस करता है और उसका डायमेंशन जो है वो 12 इंच क्रॉस करता है, राइट, तो भी वो मेजर रिपेयर में आएगा। अभी एनुलर प्लेट रिंग, एनुलर प्लेट में हम लोग कोई भी चेंज करता है और उसका भी डायमेंशन 300 mm यानी कि 12 इंच से ज़्यादा है, दैन इट इज़ मेजर रिपेयर, ठीक है। ये मैं आपको ड्राइंग करके बताऊंगा, क्लियर। 3.20, राइट। नाउ ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये वाला जैकिंग अ टैंक शेल। आप कोई भी शेल, इसमें लोगों ने क्या किया है, डिफाइन नहीं किया है कि आप फर्स्ट शेल उठाएगा या टॉप शेल उठाएगा या बीच का शेल उठाएगा। आप कोई भी शेल उठाओ तो वो मेजर रिपेयर में है और ये जनरली पूछा जाता है एच, ठीक है ना। ओनर ऑपरेटर, ओनर ऑपरेटर कौन है? द लीगल एंटिटी हैविंग बोथ कंट्रोल ऑफ एंड और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टोरेज टैंक, ठीक है। तो लीगल एंटिटी जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस दोनों का क्या है, उसके ऊपर में रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर है वो है ओनर, क्लियर। नाउ प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड मीन्स what? The side of the tank that is in contact with the stored liquid product. Definitely it will be inside only, right? क्योंकि कौन सा वाला साइड, प्लेट का कौन सा वाला साइड फ्लूइड का कांटेक्ट में रहता है, तो जहाँ पे वो स्टोर किया है दैट विल बी इन कांटेक्ट, सो इनसाइड, राइट। प्रोडक्ट साइड इनसाइड। नाउ recognize toughness, okay, that is we will discuss later on. Now reconstruction we have already discussed. रिकन्स्ट्रक्शन क्या है, तो जब उसको हम लोग नया लोकेशन पे लेके गया, अभी नया लोकेशन पे भी हम लोग पूरा टैंक लेके जाके रखेगा, दैट इज़ नॉट रिकन्स्ट्रक्शन। एनी हाउ वी हैव कट द टैंक इन some defined sizes and we will depute that one to other location and we will reconstruct, that is called reconstruction. Once I will read the organization having assessed responsibility by the owner operator to design and or reconstruct a tank. Oh, that is organization and reconstruction. Any work necessary to reassemble a tank that has been dismantled and relocated to a new site. Okay, done, clear. Now I think this is the last one and this is the longest video, I think so. Okay, repair. Now what is repair? Work necessary to maintain or restore a tank to a condition suitable for safe operation, means integrity. सेफ ऑपरेशन करने के लिए हमको जो भी काम करना पड़ता है रिस्टोर टैंक को करने के लिए, उसको हम लोग रिपेयर कहता है। रिपेयर इंक्लूड बोथ मेजर रिपेयर एंड रिपेयर्स दैट आर नॉट मेजर रिपेयर्स। एग्जांपल्स ऑफ रिपेयर्स, ओके। सो रिपेयर को भी ये लोग ने क्या किया, मेजर एंड माइनर, मीन्स नॉट मेजर मीन्स माइनर रिपेयर्स, ओके। तो अभी ये क्या बोल रहा है, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मटेरियल सच एज रूफ, शेल, बॉटम, including well metal to maintain tank integrity.
repair है, but they haven't told it is major or minor. Re-leveling and jacking of the tank shell, bottom roof, adding a replacement reinforcement plate and repair of flaws such as tears, gouges by grinding or by welding. ठीक है, तो ये सब रिपेयर है, लेकिन ऊपर उसने ऑलरेडी दिया हुआ है व्हाट इज मेजर रिपेयर, right? But here he haven't decided major or minor. These are repairs only. He is told like that. Clear? Now repair organization. Who can do repairs? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. मतलब ये चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट है. मे बी 1 or 2 questions you will get in the examination. So this will be very very important. Now repair organization. An organization that meets any of the following is called repair organization. Okay. Now first one. An owner operator of above ground storage tank who repairs or alters his her own equipment in accordance with this standard. Means owner operator खुद जो भी काम करता है, रिपेयर करता है या अल्टर करता है अपना टैंक में, वो रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ओनर ऑपरेटर खुद है. द कॉन्ट्रैक्टर हुज क्वालिफिकेशन आर एक्सेप्टेबल टू द ओनर यूज़र. ठीक है, एक तो ओनर यूज़र खुद रिपेयरर है, और दूसरा वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन और जिसका पर्सनल इज एक्सेप्टेबल टू द ओनर यूज़र, वो भी. एंड वन हु इज ऑथोराइज्ड बाय, एक्सेप्टेबल टू और अदरवाइज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द जुरिडिक्शन, एंड हु मेक्स रिपेयर्स इन अकॉर्डेंस विद दिस स्टैंडर्ड्स. ओके, मतलब जो ऑलरेडी काम कर रहा है. एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलरेडी रिपेयरिंग का काम कर रहा है, वो ऑथराइज्ड रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन है. सेकंड वन इज एक ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इट इज एक्सेप्टेड बाय द ओनर यूजर, ही इज ऑल्सो रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन. एंड थर्ड वन इज ओनर यूजर हिमसेल्फ हु इज डूइंग रिपेयरिंग or alterations to his own products, he is also repair organization. Now similar service. Okay, what do you mean by similar service? Maybe important. The process by which corrosion rate and inspection intervals are established for a candidate tank using corrosion rates and service history from a control tank of the purpose of establishing the next inspection date. Not so important. Now solid side. What is solid side? The side of the tank bottom that is in contact with the ground, that is called soil side. Sorry, not solid, that is soil side. Soil side means bottom plate's bottom which is in contact with the soil. Now storage tank engineer. Okay, now what we will see. Okay, one is production engineer of the storage tank. We are not talking about that engineer. Okay, we are talking about design engineer. So storage tank engineer is most of design engineers. Now unknown toughness. Unknown toughness, everybody knows the tank whose toughness not known by blah blah blah, that is unknown toughness. Okay, so chapter 3 is completed, and from chapter 3 we will definitely get 1 or 2 questions. So chapter 3 is important for 2 or 1 question, so kindly go through it. Thank you very much. Take care. Bye bye.